करें। Good afternoon, students. Today we will going to start our next topic of this chapter, how to calculate mode in continuous series by graphic method. Okay, so let's start. Yes, students, so first of all, we will discuss calculation of mode through arithmetic mean and median. So one can calculate mode of a series through mean and median of that series. So student actually हम जो है मोड को हम मीन एंड मीडियन को से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. And the formula is, yes, formula is z is equal to 3m minus 2x bar. So z is equal to mode, m is equal to median, and x bar is equal to arithmetic mean. You know that. Okay. So now take an example. So calculate mode of a series, the mean and median value of which are 16 centimeter and 20 centimeter respectively. So this example is given now. So here, yes, mean is equal to 16 centimeter and median is 20 centimeter. Okay. So now putting the values in the formula. So first of all, apply the formula. So what is the formula? Mode is equal to 3m minus 3 median minus 2 mean. Okay. So putting the values in this formula and we get 3 multiply 20 minus 2 multiply 60 and we get 28. Okay. So mode is equal to 28 centimeter. Okay. So by this process we calculate mode through arithmetic mean and median. Now the next is graphic method of locating mode. अब स्टूडेंट एक्चुअली हम मोड को जो है ना ग्राफ के जरिए भी हम मोड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ग्राफ से मोड, वो हमने आज देखना है. सो स्टूडेंट्स here an example is given now. So calculate mode of the following series using the graphic technique. So expenditures and number of families are given. Okay. So now we calculate mode by graphic method. So students, this graph shows expenditure on x-axis and number of families on y-axis. Okay. So now, so present the given given information in the form of histogram. So हम students जब graphic मेथड से मोड निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम्स बनाते हैं जो हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं. ओके. सो हमने क्या करा, पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम. सो यहाँ हमने देखो हिस्टोग्राम बनाए हैं 0 to 10 14 है. सो 0 to 10 14. ओके. देन 10 to 20, और आपको पता है हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, आपने 10th में किए हुए हिस्टोग्राम. सो 10 to 20 23 है हमारे पास. देन 20 to 30 आपके पास कितना गिवन है, 27. देन उसके 30 to 40 21 एंड देन 40 to 50 15. ओके. तो इस तरीके से हम लोग हिस्टोग्राम बना लेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्या करना है हमने, ज्वाइन द टॉप कॉर्नर्स ऑफ द मॉडल रेक्टेंगल विद द इमीडिएट नेक्स्ट कॉर्नर ऑफ द. एक्चुअली पहले हम क्या करेंगे, जो हमने हिस्टोग्राम बनाए हैं इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई द हाईएस्ट रेक्टेंगल. हम इसमें जो हमारा हाईएस्ट रेक्टेंगल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे. तो यहाँ पर जो हाईएस्ट रेक्टेंगल है ये हमारा ये है 20 to 30 वाला है हाईएस्ट रेक्टेंगल. सो 20 to 30 हमारे पास क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास. ओके. तो अब हमें क्या करना है, ज्वाइन द टॉप कॉर्नर्स ऑफ द मॉडल rectangle with the immediate next corner of adjacent rectangles. So the joining lines must cut each other. So students here, yes, here you can see AD, yes, see this AD and BC. Okay, AD and BC lines are drawn to join the top ends of the model rectangle with the immediate next end of the adjacent angle. ये आप देख रहे हो यहाँ पर, और इस वाले जो नेक्स्ट वाला इसका रेक्टेंगल है, यहाँ से ये एक दूसरे को ज्वाइन करने आपने, इसको इसके साथ, अगले इससे नेक्स्ट वाले के साथ, और यहाँ से इधर नेक्स्ट वाले साथ. तो फिर देन क्या आता है आपके पास, दीज लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर एट पॉइंट ई पॉइंट पर ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को. एंड देन हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ई पॉइंट ऑन द ओ एक्स एक्सिस. आपने यहीं से एक परपेंडिकुलर ओ एक्स एक्सिस पर डालना है.
ओके, देन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एंड लोकेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मोड विच इज मोड। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो वैल्यू आई, जिस वैल्यू पर ये परपेंडिकुलर आया है, तो वहां पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या हो गया हमारा मोड। तो यहाँ पर ये 24 पर आई है, तो 24 क्या है हमारी मोड वैल्यू। Okay, so now a counter check of this model value may be made by calculating mode with the following formula. And you know that what is the formula to calculate mode? Z is equal to L1 plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 multiply I. Okay, so putting the values in this formula and we get 24. So आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 24 है, वही जो ग्राफ में भी हमारे पास 24 आया था, इट मीन्स कि जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम इस तरीके से अपने जो ग्राफ को भी क्या कर सकते हैं, काउंटर चेक कर सकते हैं एग्जाम में कि क्या हमारा ग्राफ सही आया है या सही बना है, और जो मोड वैल्यू आई है वो वहां पर करेक्ट आई है या नहीं। तो इस तरीके से आप काउंटर चेक कर सकते हो। Okay students, so students, so today this chapter is completed now. So some of the students, actually some students wants to revise the second chapter of microeconomics. Okay, so today we will also discuss we also revise the second chapter. So the second chapter is central problem of an economy. सो ये स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये शायद आप लोगों को के लिए खुशी की बात होगी। तो यहाँ पर इस टाइम पर जो है आपके पास इस चैप्टर में से काफ़ी सारी जो कंसेप्ट हैं वो कट कर दिए गए हैं, और आपके पास ये चैप्टर अब छोटा सा चैप्टर अभी रह गया है। इसके अंदर जस्ट आपने क्या डिस्कस कर, आपने क्या इसके अंदर करना है, एक तो इकोनॉमी, व्हाट इज एन इकोनॉमी, सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एंड थर्ड आपने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। तो ये तीन कंसेप्ट आपने सेकंड चैप्टर में करने हैं। जो आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का या और जितने भी हैं वो सब आप क्या कर दोगे, वो आपने नहीं करने, आप छोड़ देना। जो आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कंसेप्ट हैं, यहाँ पे मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट हैं, वो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको नहीं करोगे आप अपने +1 के अंदर। ओके, तो ये सब आप काट देना। तो हम जस्ट यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें जो जो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट आपके पास, हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट कंसेप्ट जो आपके पास चैप्टर सेकंड में है, दैट इज व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? सो पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग। ये सबको पता है कि हर एक इंसान जो है वो अपने क्या है, अपने लिविंग को चलाने के लिए, अर्न करने के लिए वो काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं। हर एक इंसान जो है अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, जैसे टीचर गो टू स्कूल, डॉक्टर गो टू हॉस्पिटल, फार्मर्स गो टू देयर फील्ड, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गो टू देयर इंडस्ट्रीज। ओके, so etc. So the nature and the level of economic activities performed by the people of an area would reveal a system by which people of that area earn their living. So this system is called economy. Okay, so economy is a system by which people of an area earn their living. इकोनॉमी जो है वो एक सिस्टम है जिसके द्वारा लोग जो है वो एक एरिया में क्या करते हैं, अपनी लिविंग अर्न करते हैं। ओके, सो ये हमारी इकोनॉमी है। तो आपने जस्ट एक तो व्हाट इज एन इकोनॉमी ये आपने स्टडी करना है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है मैं आपको कुछ इसमें जो कंसेप्ट जो बहुत ज़रूरी है आपको आगे सेंट्रल प्रॉब्लम के लिए, सेंट्रल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, वो है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, तो आपको सेंट्रल प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आएंगी। सो व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? So yes students, so wants of human being are unlimited. You know that human wants are unlimited. जो इंसान की जो wants होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। आप ये देखिए, एक इंसान जो है वो मरते दम तक भी उसकी इच्छा खत्म नहीं होती। वो मरते मरते भी ये बोलेगा कि मेरी ये एक इच्छा रह गई, ये मैं चाहता था कि ऐसा हो जाए। तो जो wants होती हैं वो कभी भी इंसान की खत्म नहीं होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। बट the means of satisfying these wants are scarce. लेकिन इन wants को सेटिस्फाई करने वाले जो मीन्स हैं या रिसोर्सेज हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्केर्स यानी लिमिटेड होते हैं। ओके, जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए, आपके मान लो आपके पास मनी है,
ठीक है, अब ये तो नहीं है कि आपके पास इतनी मनी है कि आप पूरे दुनिया, पूरे वर्ल्ड की, चाहे आप सबसे रिचेस्ट पर्सन ही क्यों ना हो पूरे वर्ल्ड के, और आप अगर ये आधी रात को सोचो कि भाई मैं तो सबसे अमीर इंसान हूँ पूरे वर्ल्ड का, तो मैं जो चाहे वो ले सकता हूँ, अगर आप आधी रात को आपका मन करे वो आइलैंड मेरा हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। सो जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, इंसान के लिमिटेड होते हैं। जैसे आपके पॉकेट में मनी है, वो मनी भी आपके पास क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब मान लो आपके पास जो मनी है, वो मनी लेकर आप मार्केट में जाते हो, और मार्केट में जाके आप किसी शॉप पे चढ़ते हो, तो आपका क्या मन करता है, आपको शॉप पे चढ़ते ही आपका मन करता है मैं ये भी परचेज कर लूँ, वो भी परचेज कर लूँ, तो आपका बहुत सी चीजें परचेज करने का मन करता है। लेकिन एकदम से आपका ध्यान कहाँ जाता है, आपके पॉकेट मनी के ऊपर जाता है। अरे मेरे पास मनी तो है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ये सब चीजें नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेज आर स्carce, ओके, लिमिटेड। तो अब क्या हुआ, अब इस वजह से क्या आया, इस वजह से अब आप ये सोचोगे भी अब मनी तो मेरे पास कम है, तो अब मैं क्या करूं, तो आप ये डिसाइड करोगे कि जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है जिस चीज की, जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, वो चीज मैं लूंगा। ठीक है, तो आप वही चीज क्या करते हो, फिर आप सोचते हो और आप वो चीज लेते हो, यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई। यहाँ पे चॉइस की प्रॉब्लम आ गई ना, कि चूज करना पड़ा आपको। ऐसे ही प्रोड्यूसर्स के लिए भी होता है। अब प्रोड्यूसर्स के पास भी क्या होता है, या हम एक इकोनॉमी में बात करें, तो इकोनॉमी के में भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमी में जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उनको भी ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें डिफरेंट प्रोडक्शंस के अंदर, कि क्या कर सकें, वो लोगों की मैक्सिमम जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। ओके, और एक प्रोड्यूसर भी ये सोचता है कि वो कैसे एलोकेट करे अपने रिसोर्सेज को प्रोडक्शन के अंदर, कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो ये प्रॉब्लम जो है, ये हर एक जगह की प्रॉब्लम है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे एक इकोनॉमी है, कंज्यूमर है, उसमें प्रोड्यूसर है, या हमारे जो है गवर्नमेंट है, तो हर किसी के लिए ये प्रॉब्लम है। So student, it is impossible for an economy to produce everything for each individual, because no economy possesses unlimited resources. Okay, किसी के पास भी unlimited resources तो नहीं होते। So it becomes necessary for every economy, therefore, to make a choice regarding the efficient use of available resources of an economy. तो आगे ना उनके पास भी चॉइस की प्रॉब्लम आ गई। चॉइस किसमें, लाइक जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। ओके, फॉर एग्जांपल द इकोनॉमी has to decide how much of the resources are to be used for the development of industry and how much for the development of the agriculture। वो ये डिसाइड करेंगे कि वो कितना रिसोर्सेज को कहाँ पर कितना कितना लगाए, कितना तो वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, और कितना वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए यूज करें। सो द प्रॉब्लम कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, or the problem of choice। Okay, so students, so by this economic problem, we mean problem of choice, or the problem of economically use of scarce resources। कौन सी आ गई, problem of choice or the problem of economically use of scarce resources। okay, so main ये चीज है। okay, so next is, yes, so next is what causes economic problem। तो अब आप यहाँ बता सकते हो इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या क्या क्या कारण है, किस किस वजह से ये राइज होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये स्टूडेंट्स 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो आप यहाँ पर आपको अब टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बड़ी इजिली आप जो है इसका आंसर दे सकते हो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्यों अराइज होती है, वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज। सो 3 कारणों से होगी, वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, अनलिमिटेड वांट्स, सेकेंड लिमिटेड और स्क्वायर मींस, एंड थर्ड अल्टरनेटिव यूजेस। क्योंकि जो आपके पास रिसोर्स होते हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। कोई भी रिसोर्स आप ले लो, उन सब के अल्टरनेटिव यूज होंगे। चाहे आप अपनी मनी को ले रहे हो, मनी से आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, लैंड लैंड भी अगर हमने, लैंड के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। आप लैंड पे बिल्डिंग बना सकते हो, आप लैंड पे अपना घर बना सकते हो, आप लैंड के ऊपर क्रॉपिंग कर सकते हो। क्रॉपिंग में भी आप अलग अलग तरह की क्रॉपिंग कर सकते हो। तो अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऐसे ही जैसे मिल्क है, मिल्क के अल्टरनेटिव यूजेस हैं।
ओके। मिल्क से आप सिंपल मिल्क जो है ऐसे पी सकते हो, उसकी आप कर्ड बना सकते हो, चीज बना सकते हो, स्वीट्स बना सकते हो। तो अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, लेकिन क्या वो आपके पास इतना है कि आप हर एक चीज बना लो? नहीं। आप हमें आपके पास वो चीजें क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। और आप सोचते हो कि सबसे पहले, जैसे मिल्क के बारे में भी, आप घर पर जब आपके पास मिल्क आता है तो आप सोचते हो कि पहले मुझे इसका कैसे यूज करना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी किस चीज की है? मिल्क को लेकर। देन उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस मिल्क से क्या क्या चीजें बनानी है। ओके, कहाँ से, मतलब आप भी अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज से। ओके। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यस, एक इकोनॉमी के सेंटर, ये एक इकोनॉमी के लिए, ये हर एक इकोनॉमी के सेंटर प्रॉब्लम है जो अब हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी की भी, चाहे वो कोई कंट्री, किसी भी कंट्री को ले लो, हर एक की इकोनॉमी की ये सेंटर प्रॉब्लम्स होती हैं। 3 सेंटर प्रॉब्लम्स यस यहाँ पर होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करें। और इसके साथ आप एक और लगा सकते हो, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करें और कितना करें। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। तीनों ही प्रॉब्लम आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, इनमें से एक प्रॉब्लम तो आपको मिलेगी मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम आपने बहुत अच्छे से करनी है। ये 3 प्रॉब्लम जो है वो हर एक इकोनॉमी के प्रॉब्लम होती हैं। सो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। yes students, so the sorry, फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रॉब्लम है ये? The first and foremost problem of every economy is what goods and services should be produced so as to satisfy the maximum wants of the people. सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि क्या, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन कर रहे हैं कि लोगों की जो मैक्सिमम वांट्स है उनको सेटिस्फाई किया जा सके। मान लो आप तो अपने आप को ही मान के चलो कि आप एक प्रोड्यूसर हो, ठीक है। आप कोई प्रोडक्शन, आपने ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपके सामने क्या प्रॉब्लम आई? मैं कौन सी चीजों की प्रोडक्शन करूं, कौन सी चीजों की प्रोडक्शन करूं कि मेरी क्या हो जाए कि लोगों की क्या हो, लोगों की डिमांड पूरी हो जाए, ठीक है, और मुझे भी प्रॉफिट हो जाए। सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर ये भी चाहेगा कि उसके उसको प्रॉफिट भी हो जाए। तो आप सर्च करते हो तो कि भाई कौन सी गुड्स की प्रोडक्शन करनी है, फिर आप कौन सी गुड की प्रोडक्शन करते हो जिसकी मार्केट में डिमांड इस टाइम पर सबसे ज्यादा है, तो आप वो सोचते हो कि चलो मैं इस चीज की प्रोडक्शन करना शुरू करता हूँ। तो पहली प्रॉब्लम आपके सामने क्या आई? व्हाट टू प्रोड्यूस। Okay, so this problem arises due to the fact that means are scarce in relation to their wants. So ये problem क्यों arise हुई? वही कि जो आपके resources हैं वो scarce हैं, और आपकी जो wants के relation में जो resources हैं वो scarce हैं, और alternative uses हैं उनके। So each economy has therefore to make a choice as to which wants it should satisfy and which ones it should forego. सो यहाँ पर आपके पास 2 डिसीजन आपने लेने होंगे। फर्स्ट क्या होगा? द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल, which of the consumer good like sugar, cloth, wheat, ghee, etc. are to be produced, and which of the capital good like machine, tractor, okay, are to be produced. Similarly, choices has also to be made between the production of wartime goods। मतलब वो ये भी सोच सकते हैं कि मान लो वो टाइम गुड्स की प्रोडक्शन करें, मान लो इकोनॉमी में वो चल रही है, तो उस टाइम पर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे वो टाइम गुड्स की मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूं, लाइक जैसे राइफल, गन्स, टैंक्स। ऐसे ही पीस टाइम गुड्स लाइक ब्रेड एंड बटर। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब ये हो गया, हमने डिसाइड कर लिया। अब पहली प्रॉब्लम हो गई उसके सॉल्व कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है। इसके साथ साथ फिर क्या आगे, जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोडक्शन करनी है, अब ये डिसाइड करेगा कि कितना करना है। सो व्हेन एन इकोनॉमी हैज टेकन अ डिसीजन as to what goods or services are to be produced, then it has to decide about its quantity। फिर वो उसकी क्वांटिटी के बारे में सोचेगा, and how much of the consumer goods and how much of capital goods are to be produced। For example, if an economy decide to produce more of cloth and wheat within a given period and with limited means, ठीक है, तो देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ मशीन। मशीन का कम यूज करेगा, मशीन की प्रोडक्शन कम करेगा, क्योंकि उसने ये डिसाइड किया है कि वो क्लॉथ एंड व्हीट की प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, ये डिसाइड किया। ओके, सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। सो
अब सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करनी है। यस स्टूडेंट्स, सो सेकंड जो प्रॉब्लम है ये किस चीज की प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी। So we have two technology. First is labor intensive technique and second is capital intensive technique. Okay. So production, so जैसे कि for example production of cloth is possible either by handloom or by modern machine. So this problem is concerned with the efficient use of resource. अब ये problem यह है कि हम efficient use resources का efficient use के साथ कैसे करना है. It implies more production at less cost, कि production ज्यादा हो जाए और cost कम से कम आए. तो यहाँ पे दो टेक्निक होगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. In labor intensive technique, labor is used more than capital. In capital intensive technique, capital is used more than labor. So an economy must decide as to which technique is to be used in a given industry so that productivity is raised and cost is low. And students, third is जो है हमारी third problem is for whom to produce. So for whom to produce, yes. So for yes students, for whom to produce. सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर आपके पास सिंपल वन मार्क्स में आती है और आपसे पूछा जाए ये किसके रिलेशन में होती है, तो आपने सिर्फ एक आंसर लिखना है, फॉर whom to produce is related with the distribution of national income या distribution of final goods and services. मेन प्रॉब्लम ये है. ओके कि हम अपनी जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे करना है. ओके वैसे तो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें, लेकिन अगर वन मार्क में तो मेन ये प्रॉब्लम होती ही इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. So owing to limited resources, an economy cannot produce goods for all section of the society to extent desire. So broadly, every economy has two section of the society. एक तो first is the rich and second the poor. So social justice promoted if more goods are produced for the poor. अगर वो गरीबों के लिए ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है तो वो क्या कर रही है, सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रही है. तो इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी. क्योंकि अगर जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, इंडिया अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, तो वहां पर पुअर सेक्शन बहुत बड़ा है. तो अब पुअर सेक्शन बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है. तो अगर यहाँ पर डिसीजन लेने की बारी आए तो वो ये सोचते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हमने सबसे पहले दूर करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव. गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाऊं ताकि लेबर को ज्यादा से ज्यादा लगा के अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके. तो यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस होती है. बट देयर इज अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट, लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी. सो बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर, द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर विल रिमेन लो. प्रोड्यूसर के प्रॉफिट कम हो जाएंगे. सो लो प्रॉफिट वुड मीन लो इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्लाइंग लो जीडीपी ग्रोथ. सो द इकोनॉमी वुड रिमेन बैकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम. So there is a problem of choice, social equality और GDP growth. Okay, so सब कुछ देखना पड़ेगा कि फिर इसलिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पर सोशल जस्टिस के लिए करना है और कहाँ पर प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी बहुत जरूरी है एक इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. ओके तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज opportunity cost. So the concept of opportunity cost. So students, the opportunity cost क्या होती है, opportunity cost refers to value of factors in its next best alternative use. आप इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि ये क्या होती है. सो यहाँ पर एक हमने लिया है, एक इलस्ट्रेशन ली है. So students, it needs to be noted that a factor may have more than two uses. In any such situation, opportunity cost is to be taken as the value of factor in its next best use only. मान लो एक फैक्टर, कोई फैक्टर है उसके दो से ज्यादा यूजेस हैं, तो अब वहां पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो क्या होगी, उस फैक्टर का जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज होगा ना, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. अब यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया जहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज है 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड एंड अ गिवन पैकेज ऑफ other inputs. Okay, possible uses of land along with the package of other inputs. तो ये आपके पास क्या दिए हुए हैं,
यूज वन प्रोडक्शन ऑफ वीट यूज टू, आपको 4 यूजेस दे दिए इसके, प्रोडक्शन ऑफ वीट, प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ मेज एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर के। मार्केट वैल्यू दे दी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, यस, जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है उसकी मार्केट वैल्यू 10,000, प्रोडक्शन ऑफ राइस की मार्केट वैल्यू 8,000 rupees, and the production of maize 7,000 rupees, and production of sugarcane 12,000 rupees। और अजम्पशन, यस, अजम्पशन तो जब भी हम कुछ ऐसा कोई भी थ्योरी बताते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अजम्पशन जरूर होती हैं उसकी, अदरवाइज तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कुछ चीजों को हमें अज्यूम करना पड़ता है, तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट एंड रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू है प्रोडक्शन की, किस वाले यूज में सबसे ज्यादा है? यूज 4 में, शुगर केन में 12,000 रुपीज। ओके, सबसे ज्यादा ये आपके पास है। सो अब तो आप क्या लोगे, तो अब ऑब्वियसली रिसोर्सेज विल बी एम्प्लॉयड इन यूज फोर में रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज मैक्सिमम 12,000 रुपीज, तो आप इसी को चूज करोगे। ठीक है, अब हमने देखना है इसका नेक्स्ट बेस्ट, जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज क्या है। अगर हम 12,000 के बाद कहीं जाना चाहेंगे तो कहाँ जाना चाहेंगे? यूज वन वीट के ऊपर 10,000। सो 12,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 10,000 प्रोडक्शन ऑफ वीट। और अगर हम प्रोडक्शन ऑफ वीट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना चाहते हैं तो उसका नेक्स्ट बेस्ट क्या है? 8,000, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ राइस। ओके, और इसका प्रोडक्शन ऑफ राइस का नेक्स्ट बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 7,000। तो इस ये होता है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज होगा। Okay, so opportunity cost of the employing resources in use 4 is equal to loss of output in next best alternative use of the given resource, which is rupees 10,000 in use 1। Okay students, so ये चैप्टर अब आपका मैंने दोबारा जो है कंप्लीट रिवाइज करा दिया। आप अपनी आपने सिर्फ यही कंसेप्ट इस चैप्टर